بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب امارات کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ خبر نامے کے ساتھ عبدالستار خان لغاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ فرینڈز، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر لیا تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں آج کے بلیٹن کی طرف۔ سب سے اہم خبر اور سب سے خوشی کی خبر، جو پاکستانی زائرین، پاکستانی مسافر عرب امارات میں پھنسے ہوئے ان کے لیے اچھی خبر۔ سب سے پہلے اچھی خبر کا آغاز کریں گے۔ متحدہ عرب امارات میں پروازیں دوبارہ شروع ہونے والی ہیں۔ ایمریٹس ایئر لائن کے سربراہ نے بتایا کہ 6 اپریل سے مسافر پروازیں محدود پیمانے پر شروع کی جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے گزشتہ ماہ مارچ کے دوران تمام مقامی اور بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت پر پابندی لگائی تھی، جس کا مقصد کورونا وائرس کے وبا کو پھیلنے سے روکنا تھا۔ اس فیصلے کی وجہ سے وزٹ ویزا پر آنے والے ہزاروں افراد بھی امارات میں ہی پھنس گئے تھے اور اپنے پاس موجود رقم کم ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ سوری۔ تاہم متحدہ عرب امارات کی جانب سے مقامی اور بین الاقوامی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، تاہم یہ مسافر پروازیں محدود تعداد میں ہوں گی۔ گلف نیوز کے مطابق 6 اپریل 2020 سے محدود مسافر پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے اماراتی حکام نے ایمریٹس ایئر لائن کو پروازیں دوبارہ شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کے چیئرمین اور سی ای او شیخ احمد بن سعید ال مکتوم نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ 6 اپریل سے ان سیاحوں اور تارکین وطن کے لیے مسافر پروازیں شروع ہو جائیں گی جو اپنے وطن واپس جانے کے منتظر اور خواہش مند ہیں۔ شیخ احمد بن سعید ال مکتوم، جو دبئی سول ایوی ایشن کے صدر بھی ہیں، ان کا اپنے ٹویٹ میں مزید کہنا تھا کہ اگلے چند روز میں اماراتی مسافر پروازیں بتدریج شروع کر دی جائیں گی، جن پر اس وقت آپریشنل پابندیاں عائد ہیں۔ تاہم ان پروازوں کے دوران مسافر اور عملے کی صحت کے تحفظ کو یقینی بنانے کی خاطر ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے، کیونکہ لوگوں کی بھلائی اور تحفظ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ امارات سکائی کارگو کی جانب سے ان مسافر پروازوں کو تجارتی سرگرمیاں بڑھانے کی خاطر بھی استعمال میں لایا جائے گا۔ اب ہم چلیں گے فرینڈ اپنی اگلی نیکسٹ نیوز کی طرف۔ کل ہم نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں دبئی منی بسوں پر پابندی لگائی گئی تھی۔ آج کی پوسٹ کے مطابق دبئی میں منی بس سروس پر پابندی ہٹا لی گئی۔ روڈ اتھارٹی کے ترمیم شدہ سرکلر میں منی بسوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ تمام سیٹوں پر مسافر نہیں بٹھائیں گے، بلکہ انہیں فاصلے پر بٹھایا جائے گا۔ دبئی سمیت متحدہ عرب امارات کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جن کی خاطر خواہ نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، اور مملکت میں باقی تمام دنیا کی نسبت کورونا کے مریضوں کی شرح میں تیزی سے اضافہ نہیں ہو رہا۔ گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ دبئی میں منی بس سروس پر پابندی لگا دی گئی تاکہ کورونا کے وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اس بارے میں دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے ایک سرکلر بھی جاری کیا گیا تھا۔ تاہم اس روڈ اتھارٹی کی جانب سے منی بس چلانے پر عائد پابندی ہٹا لی گئی۔ اس سلسلے میں ترمیم شدہ سرکلر جاری کیا گیا، جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ منی بسیں اپنی سروس جاری رکھ سکتی ہیں، تاہم انہیں تمام سیٹوں پر مسافر بٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سرکلر میں منی بسوں کے انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام سیٹوں پر مسافر نہیں بٹھائیں گی، بلکہ انہیں ایک دوسرے سے محفوظ فاصلے پر بٹھایا جائے گا تاکہ کورونا وائرس کی منتقلی کے امکانات کو کم سے کم ہو سکیں۔ واضح ہے کہ پرانے سرکلر میں بتایا گیا تھا کہ دبئی کے تمام علاقوں میں منی بسیں چلانے پر پابندی ہوگی۔ پابندی کا اطلاق تمام ٹرانسپورٹ کمپنیوں اور بس رینٹل کمپنیوں پر ہوگا۔ سرکلر میں ہدایت کی گئی تھی کہ منی بسوں میں مسافر بٹھانے پر پابندی لگائی گئی ہے اور یہ پابندی تا حکم ثانی لاگو رہے گی۔ روڈ اتھارٹی کے مطابق منی بسیں چلانے پر پابندی کا مقصد مملکت میں مقیم تمام مقیم اور غیر ملکی افراد کو کورونا کے وبا سے محفوظ رکھنا اور اس کی روک تھام کرنا تھا۔ روڈ اتھارٹی کی جانب سے گلف نیوز کو بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو سرکاری نجی ٹرانسپورٹ چلائی جا رہی ہے، ان کی انتظامیہ اور ڈرائیور کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مسافروں کو پہلے کی طرح ساتھ ساتھ نہیں بٹھائیں گے، بلکہ انہیں محفوظ فاصلے پر بٹھایا جائے گا تاکہ کورونا سے متاثر کسی مسافر سے موذی وائرس دیگر مسافروں میں منتقل ہونے کا امکان کم سے کم ہو۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ نیوز کی طرف۔ لاکھوں درہم کی گھڑیاں کوڑیوں کے مول بیچ دیں۔
दुबई की फौजदारी अदालत ने जेवरात और कीमती घड़ियों के शोरूम में सफाई कारकुन 1 बरस कैद और बेदखल करने की सजा सुना दी गई। एशियाई कारकुन ने गोल्ड मार्केट के शोरूम से 86 कीमती घड़ियां चोरी की थी। उनकी कीमत का तखमीना 83,75,000 दरहम लगाया गया है। दुबई अदालत ने 2 और एशियाई बाशिंदों को यही सजा सुनाई जिन्होंने चोरी के बारे में इल्म होने के बावजूद घड़ियां खरीदी थीं। तहम शोरूम के मालिक ने तहकीकात के दौरान बताया कि इसका काम जेवरात और कीमती घड़ियों का है। एक दिन इसे बताया गया कि कार्टियर घड़ी डस्टबिन में से मिली है। घड़ी में 50% सोना और कीमती अशिया इस्तेमाल की गई थी। इसकी कीमत 30,000 दरहम से ज़्यादा थी। शोरूम के मालिक का कहना था कि इब्तिदा में मामला संजीदगी से नहीं लिया और सोचा कि शायद गलती से ये घड़ी कचरेदान में गिर गई हो, लेकिन जिस सेल्समैन ने ये शिकायत की थी इसने एक दूसरे शोरूम के एक और सेल्समैन को इस बात की इतला दी। फिर दोनों ने सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जिससे पता चला कि सफाई कारकुन घड़ी चोरी करके एक डब्बे में रख कर डस्टबिन में डाल रहा है। मालिक ने कहा कि मैंने कारकुन को तलब किया और इससे घड़ी चोरी करने का सबब दरियाफ्त किया तो इस कारकुन का कहने लगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए ऐसा किया है, आइंदा नहीं करूंगा। शोरूम के मालिक ने अपना बयान जारी रखते हुए मजीद बताया कि सफाई कारकुन के भाई जो इसी शोरूम में काम करता है की मौजूदगी में कारकुन से दोबारा पूछ गुछ की गई तो इस पर इसने कई घड़ियां चोरी करने का एतराफ़ किया। इसने बताया कि मैंने गेराड ब्रांड वाली घड़ी चोरी की थी जिसकी कीमत 2.5 लाख दरहम है। इसके अलावा एक और कीमती घड़ी चोरी की जिसकी कीमत 2,70,000 दरहम है। कारकुन ने यह भी बताया कि इसने ये घड़ियां 10-10 हज़ार में एक एशियाई को फरोख्त की थी। मुलजिम ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन के सामने बयान देते हुए इकरार किया कि इसने शोरूम से और भी घड़ियां चोरी की थीं। 2 और मुलजमान के भी नाम लिए मामला फौजदारी की अदालत में पेश कर दिया गया। 2 मुलजमान दुबई से फरार हो गए। उनके खिलाफ उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया गया। अदालत ने तीनों को 1-1 बरस कैद और मुल्क से बेदखली की सजा सुना दी। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमारात में मुकीम अफराद को कोरोना वायरस से मुतालिक मालूमात के लिए सरकारी वेबसाइट का आगाज़ कर दिया गया। वकाया नामी इस वेबसाइट पर लोग कोरोना वायरस के बारे में सवालात भी कर सकते हैं जिनका फौरी तलब जवाब दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस से निपटने और अवाम में इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पैदा करने के लिए हुकूमती सतह पर एक और अहम इक़दामात लिया गया। इमराती मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम तारकीन वतन और मकामी अफराद को कोरोना वायरस के ख़तरात से आगाह करने, इससे मुतालिक अलामात की निशानदेही करने और दीगर मालूमात फराहम करने के लिए एक वेबसाइट वकाया के नाम से शुरू की गई है जहाँ पर लोग कोरोना के हवाले से मालूमात लेने के लिए सवालात भी कर सकेंगे जिनके जवाब भी फ़ौरन दिए जाएंगे। ये वेबसाइट अमारात की नेशनल एमरजेंसी क्राइसिस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NCEMA ने गुज़श्ता रोज़ कायम की, जिसका वेब एड्रेस मैं आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन बता देता हूँ www.wqawaya.ae/en है, जहाँ पर कोरोना के हवाले से मालूमात के अलावा सवाल जवाब का एक सेक्शन भी मुख्तस किया गया है। इस वेबसाइट के ज़रिए लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वह इमारात में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इख्तियार किए गए इक़दामात पर अमल दरामद में मदद मिलेगी। जबकि हालिया दिनों मुल्क में सफाई सुथराई की खातिर चलाई जा रही सैनिटाइजेशन मुहिम के दौरान कर्फ्यू के हवाले से भी आगाही दी जा रही है। शहरियों को ये शऊर भी दिया जा रहा है कि वह मौजूदा हालात में समाजी फासला अपनाकर खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं, जबकि इस मामले में एहतियाती तदबीर की भी निशानदेही की गई है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ अमारात में कोरोना के 150 नए केसेस सामने आए थे, जिसके बाद कुल केसेस की तादाद 814 हो गई, जबकि बुध के रोज़ कोरोना वायरस का शिकार होने वाले मज़ीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। यूँ मुमलिकत में वायरस के बायस होने वाली अमवात की तादाद 8 हो गई। बुध के रोज़ एक 62 साल एशियाई शहरी और एक 78 साल खलीजी शहरी इंतकाल कर गए। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
दुबई और शारजा में मुकीम वालिदैन को अच्छी खबर सुना दी गई। वज़ारत तालीम ने पाकिस्तानी और भारतीय स्कूलों की इंतज़ामिया को पहली ट्रंप की ट्रांसपोर्ट फीस वापस करने का हुक्म दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना वायरस की वजह से लिए गए खसूसी इक़दाम की वजह से लोगों की बड़ी तादाद बड़ी गिनती माली मुश्किलात का शिकार हो चुकी हैं। लाखों गैर मुल्की ऐसे हैं जो अपने अहल खाना के साथ यहाँ पर मुकीम हैं और उनके बच्चे स्कूल में ज़ेर तालीम हैं। कारोबार की बंदिश होने के बायस बहुत से पाकिस्तानी वालिदैन को भी मुस्तकबिल करीब में अपने बच्चों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने में बड़ी मुसीबत का सामना है। ऐसे हालात में दुबई और शारजा में मुकीम वालिदैन को बड़ा रिलीफ मिल गया। वज़ारत तालीम ने दोनों रियासतों में वाक़ पाकिस्तानी और भारतीय स्कूल की इंतज़ामिया को हुक्म जारी किया कि वो स्कूल में तालीम का सिलसिला बंद होने के बायस वालिदैन को फर्स्ट टर्म की बस फीस वापस करने के पाबंद होंगे, क्योंकि उन स्कूल का तालीमी सेशन 5 अप्रैल 2020 से शुरू होना है। बस फीस की वापसी का इतलाक दीगर निजी स्कूल पर भी होगा। वालिदैन की जानिब से भी मुमलिकत में स्कूलों की बंदिश के बायस आवाज़ उठाई जा रही थी कि इन्हें स्कूल बस की फ़ीस वापस दिलाई जाए। शारजा प्राइवेट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से भी गुज़श्ता रोज़ सर्कुलर जारी किए गए हैं, जिनमें निजी और एशियाई स्कूलों को ताकीद की गई है वह वालिदैन को ट्रांसपोर्ट फ़ीस और ट्यूशन और न्यूट्रिशन फ़ीस वापस कर दें। कोरोना की वजह से स्कूल बंद होने के बायस जिन सर्विसेज से बच्चे फ़ायदा नहीं उठा रहे उनके बदले में वसूल की गई फ़ीसें भी वापस करना होंगी। ताहम वालिदैन को भी पाबंद किया गया वो तालीमी साल के दौरान अदा न की गई फ़ीसें फौरी तौर पर जमा कराएँ। इस सर्कुलर में हिदायत की गई है कि एशियाई स्कूल ट्रांसपोर्ट फ़ीस और न्यूट्रिशन फ़ीस वसूल नहीं करेंगे, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस वसूल की जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई रोड अथॉरिटी की टैक्सियां घरों में खाना और दीगर अशिया पहुंचाने लगीं। इस इकदाम का मकसद कोरोना की सूरत हाल में लोगों को घर बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग की तरगीब देना है। दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से बताया गया कि इसके ज़ेर इंतज़ाम टैक्सी सर्विस ने लोगों के ऑनलाइन ऑर्डर पर उन लोग के घरों में खाना और दीगर ज़रूरी सामान पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। इस मकसद के लिए अथॉरिटी की जानिब से दुबई की ऑनलाइन कंपनियों से शराकत की है, जिसके तहत इन कंपनियों को फूड आइटम और दीगर सामान वगैरह के दिए गए ऑनलाइन ऑर्डर को अथॉरिटी के आम टैक्सियों और फ्रेंचाइज टैक्सियों के ज़रिए पूरा किया जा रहा है, जो लोगों के घरों की दहलीज पर उनका मुतालबा सामान पहुंचा रही हैं। इस अहम इकदाम की वजह मुत्तहिदा अरब अमारात में इन दिनों कोरोना की रोकथाम के लिए जारी स्टेरिलाइजेशन की मुहिम है, जिसके दौरान लोगों को घरों पर रहने का पाबंद किया गया है। इसी वजह से अमाराती सार्फिन में आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान कई गुना बढ़ गया, खासतौर पर रेस्टोरेंट से सॉरी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाने वालों की गिनती सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हुकूमत की जानब से रेस्टोरेंट्स को आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। अलबत्ता ये रेस्टोरेंट ऑनलाइन ऑर्डर करके लेकर मतलूबा खाना सार्फिन तक पहुंचाते हैं। इस मकसद के लिए दुबई रोड अथॉरिटी की टैक्सियां भी इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। हुकूमत की जानब से लोगों को कहा गया है कि वो घरों तक ही महदूद रहें, अलबत्ता कोई ऐसा ज़रूरत हो तो फिर घरों से निकला जा सकता है। रोड अथॉरिटी के इस इकदाम में सबसे पहले यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी और एमिरेट्स स्पोर्ट्स ने भी शमूलियत इख्तियार की। दुबई मीडिया ऑफिस की जानब से बताया गया कि अथॉरिटी की टैक्सियों को ऑनलाइन ऑर्डर की तकमील के लिए इस्तेमाल में लाने का एक मकसद ये भी है कि इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग में तेज़ी की वजह से कंपनियों को मतलूबा ऑर्डर बर वक्त पूरा करने में मुश्किलात का सामना आ रहा है। ताहम अथॉरिटी की टैक्सी सर्विस के ज़रिए ये ऑर्डर अब वक्त पर निपटाए जा रहे हैं। पर ये तो थी अरब अमारात की कुछ अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर की रही। आप अगर मेरे साथ टच रहना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको भाई आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।